Welcome children. Today we will start a new chapter, Chemical Effects of Electric Current. So this is chapter 14 of class 8. We will be discussing the whole chapter in two parts and today we are going to discuss the part 1 of this chapter. So what we are going to discuss today? Conductors and insulators, use of testers, various solution conducting electricity, LED, magnetic effect of electric current, tester by using magnetic compass. So children, all of you know that what are conductors and what are insulators and which materials are the good conductors of electricity and which materials are the bad conductors of electricity. And we also know that whether the liquid can conduct the electricity, and if so, then what kind of liquids can conduct the electricity. So all these things we have studied in our lower classes. Okay, and we have a concept that water can conduct electricity. But let me tell you children, the pure water, the distilled water is not a conductor of electricity. But you might have observed that the water that we drink, the water we use for various purposes, the marine water are conducting the electricity very efficiently. बहुत अच्छे से electricity conduct कर रहे हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर हम जिस सोर्स से हमको वाटर मिल रहा है, चाहे वो पंप्स है, चाहे वो वेल है या पॉन्ड है या रिवर है या टैप है, कुछ भी है, दे आर नॉट एब्सोल्युटली प्योर वाटर. उसमें कुछ ना कुछ डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं और जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. यू हैव टू नो that pure water can never conduct electricity, but if the water contains some salt or some impurities, then only it can conduct the water. And why the distilled water cannot conduct electricity? Because it is the pure form of water and it does not have any salt or any minerals, so it is the bad conductor of electricity. So just to recollect the whatever you have studied in your previous class, I mean your class 7th and 6th, let us discuss the conductor and insulators. Conductors are those materials which allows an electric current to pass through it. For example, some metals. But remember children, all metals cannot conduct electricity. Okay. So the metal like copper, iron, etc. are the very good conductor of electricity. Now the insulators, which are also known as the bad conductors. So the materials that do not allow the free flow of an electric current through it are known as bad conductors or insulators like rubber, plastic, wood, etc. Okay. So these are the simple definition of conductors and insulators. Now let me remind you about the electric circuit. What is an electric circuit? It is a closed loop pathway through which a current is taken is known as an electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप पाथवे होता है जिसके थ्रू करंट पास होता है. एंड व्हेन द पाथ ऑफ द सर्किट इज क्लोज्ड, जब ये पाथ क्लोज होता है तो करंट फ्लो होता है, और जब ये करंट ये क्लोज नहीं होता तब इसमें आपका करंट फ्लो नहीं होता. जैसे यहाँ आपको हमने जो पिक्चर दिखाया, यहाँ पर ये क्लोज है या ओपन है?
दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और एक सर्किट के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बैटरी। बैटरी क्या होता है? आप पढ़ चुके हो, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल। सो ये एक एक आपका सेल है। सो दीज आर 3 cells टुगेदर, दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म एन बैटरी। ठीक है, ये तीनों मिलके आपका बैटरी है। हम यहाँ पर एक सेल भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक सर्किट के लिए और क्या जरूरत है? वायर। ठीक है, कंडक्टिंग वायर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए। देन एक लाइट बल्ब चाहिए, ओके, एज यू कैन सी हियर। देन ए स्विच। आप ऐसे स्विच की जगह पर एक सिंपल स्विच सेफ्टी पिन यूज करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्विच ऑन है, इसीलिए लाइट बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर ये स्विच ऑफ हो जाए यानी आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अच्छा, अभी हम जानते हैं कि कंडक्टर इंसुलेटर कौन सा है, उसके बारे में तो हम जान चुके हैं। लेकिन अभी हमको कैसे पता करना है कि कौन सा चीज गुड कंडक्टर है या कौन सा चीज बैड कंडक्टर है? तो बच्चों देखते हैं, हम एक टेस्टर लेते हैं। टेस्टर एक डिवाइस होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे बच्चों यहाँ आप सबके घर में टेस्टर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लग पॉइंट है वहां करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बारे में पता करने के लिए हम टेस्टर की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तो अभी हमको पता करना है कि ये एक टेस्टर है, ये एक डिवाइस है। इसका 2 हिस्सा है, आप देख सकते हैं। एक हिस्सा जो कि लिखा गया है आपका गुड कंडक्टर, मतलब ये मेटल से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। लेकिन उसका जो पिछले वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है, दैट इज कंप्लीटली कवर्ड विथ प्लास्टिक। और आपको पहले से पता है कि प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। लेकिन सपोज से किसी को मालूम नहीं है तो किस तरह पता करना है? तो अभी हम पहले क्या करेंगे, ये सर्किट जो है आपको पहले बता चुकी हूं मैं, सर्किट क्या होता है। सर्किट का जो दोनों वायर है, कनेक्टिंग वायर है, उसको हम ये जो उसका मेटालिक पोर्शन है वहां पर ज्वाइन करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो दोनों कनेक्टिंग वायर कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है? एक गुड कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। That's why there is a continuous flow of electricity. That's why the bulb glows. ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ जो मेटल का जो मटेरियल यूज हुआ है, मेटेलिक चीज जो है यूज हुआ है, दैट इज ए गुड कंडक्टर। अभी नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो कि सेम सर्किट, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दोनों वायर को इसका जो प्लास्टिक कवर था उस प्लास्टिक कवर के ऊपर हमने जोड़ दिया। तो अभी देखेंगे कि बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, यहाँ बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक इंसुलेटर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है और continuous flow of electricity is not there. That's why it is not a good conductor. It is an insulator और poor conductor भी कह सकते हैं। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल सर्किट में हम कोई भी चीज को जोड़ के हम पता कर सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। अभी बच्चों हमने टेस्टर की बात जब कही तो हमको जानना ये जरूरी है कि टेस्टर होता क्या है। ठीक है, ए टेस्टर इज ए पीस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये किस लिए यूज होता है बच्चों? टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में जानने के लिए हम ये यूज करते हैं। एंड इट इज यूजुअली ए कंडक्टर विथ ए लेड बल्ब, लेड और बल्ब, एलईडी और बल्ब। इसके अंदर एक आपने देखा होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कहीं अगर कंडक्टर के साथ इसको टच किया जाता है तो आपने देखा होगा इसके पीछे की तरफ एक बल्ब होता है, वो ग्लो होता है। ठीक है,
तो उससे आपको पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका मेन पार्ट क्या है मैं आपको बता दूं। ये एक टेस्टर है, टेस्टर का ये एक मेटालिक रॉड है, आप यहाँ जैसे देख सकते हो। उसके बाद ये मेटालिक रॉड का पिछले वाला जो हिस्सा है दैट इज कवर्ड विथ ए इंसुलेटर, क्योंकि हम इसको पकड़ते हैं ताकि हमको कोई नुकसान ना हो, इसीलिए ये एक इंसुलेटेड मटेरियल से बना हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर एक बल्ब होता है, जिस बल्ब के अंदर नियॉन गैस होता है। ठीक है, और कभी आजकल के जो टेस्टर आते हैं उसमें एलईडी भी होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ताकि सर्किट क्लोज हो जाए। सर्किट क्लोज होने से ही बल्ब जलेगा। अगर स्प्रिंग नहीं होता तो क्या होता, सर्किट हमेशा क्लोज रहता और इसका जो कैपेसिटी है यानी जो जलने का कैपेसिटी है वो जल्दी खत्म हो जाता। ठीक है, जो इसके अंदर एक जो लिक्विड है या कोई केमिकल से जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी वो खत्म हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक मेटालिक टॉर्च स्क्रू होता है जिससे ये बल्ब अटैच्ड होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका टेस्टर का डिफरेंट पार्ट्स। ये आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको पता चले कि टेस्टर जो बाहर से इतना सिंपल दिखता है इतना सिंपल नहीं है, उसके अंदर काफी सारे मटेरियल्स यूज हुए हैं जो कि एक क्लोज सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ हम बच्चे कुछ एक्टिविटी करेंगे। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ योर बुक 14.1. Join the free ends of the tester together for a moment. This completes the circuit of the tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. अभी जैसे हमने देखो बच्चों इस पिक्चर में हमने आपको दिखाया, इससे पहले वाला पिक्चर में, कि टेस्टर का दोनों एंड को अगर इसको इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर ज्वाइन कर दे वायर से तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? कभी ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर टेस्टर का दोनों वायर को ये जो वायर है ये जो सही कनेक्शन अगर दिया तब भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो उसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज? क्या क्या रीजन हो सकते हैं, हम थोड़ा सोचते हैं। इट इज पॉसिबल दैट कनेक्शन आर लूज, कनेक्शन लूज हो सकता है। और द बल्ब इज फ्यूज्ड, हो सकता है बल्ब फ्यूज है, क्योंकि आपको पता है हमने जिस जगह पर टेस्टर का वायर को कनेक्ट किया है दैट इज ए कंडक्टर। या फिर क्या हो सकता है, योर सेल आर यूज्ड अप, सेल में केमिकल्स नहीं है, केमिकल खत्म हो चुका है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहा है। सो ये तीनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है। अगर आपने सही कंडक्टर के साथ सर्किट बनाया, क्लोज सर्किट बनाया, फिर भी अगर आपका बल्ब नहीं जल रहा है तो ये तीनों में से कोई रीजन हो सकता है। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे कनेक्शन टाइट है कि नहीं देखना है। इफ दे आर लूज देन रिप्लेस द बल्ब विथ अनदर बल्ब। ठीक है, नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल विथ फ्रेश सेल। ठीक है, फिर अभी देखो हमने बल्ब चेंज करने के बाद भी अगर टेस्टर को जोड़ने के बाद भी आपका बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेल में कुछ गड़बड़ी है। तो अभी हम सेल को रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह एक के बाद एक रिप्लेस करके हम पता कर सकते हैं कि कहां पर गड़बड़ी है। ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटी करने के टाइम बच्चों आपको कुछ सावधानी बरतना है। While checking your tester, do not join its free ends for more than a few seconds. जैसे हमने जो उसका जो आयरन रॉड वाला है, मेटालिक रॉड है, उस रॉड में ज्यादा देर तक दोनों वायर को जोड़ के नहीं रखना है, क्योंकि वो जो सेल होता है ना आपका सर्किट में, जो सेल है उस सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो कंटिन्यूअस जनरेट होके उसके अंदर जो केमिकल है वो खत्म हो जाएगा और बैटरी जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है,
अभी हम देखेंगे दूसरा एक्टिविटी 14.2, कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल एंड क्लीन देम। कुछ जो काम का बोतल नहीं है प्लास्टिक का, उसका कैप वगैरह कुछ स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप आप कलेक्ट कर लो और उसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस या फिर विनेगर डाल दो। सबके घर में विनेगर होता है, या फिर सिंपली आप लेमन जूस डाल दो एक कैप में। देन ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डीप इनटू द लेमन जूस और विनेगर। ये जो टेस्टर का एंड है, टेस्टर का दो एंड जो होता है उसको आप विनेगर के अंदर डीप करो। लेकिन इसके ये करने के टाइम आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। देखो जैसे कि द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। मतलब हम पिक्चर आपको दिखाएंगे, दोनों टर्मिनल जो है वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस में भी नहीं होना चाहिए और अटैच भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। डज द बल्ब ऑफ दिस टेस्टर ग्लोस, टेस्टर का बल्ब ग्लो हो रहा है क्या, अभी देखना है हमको। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि लेमन जूस या विनेगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस और विनेगर, ए गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर। अभी हम देखते हैं, ये रहा आपका, ये जो है आपका लेमन जूस लिया गया यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूं, ये है आपका लेमन जूस। यहाँ आपने लेमन जूस लिया कैप में, फिर यहाँ पर आपने क्या किया, ये सर्किट बनाया, दिस इज द कंप्लीट सर्किट, ये सर्किट है। ठीक है। ये सर्किट में आपका ये रहा बैटरी का सिंबल, आप 7th क्लास में पढ़े हो बैटरी का सिंबल, फिर बल्ब का सिंबल, फिर ये है इलेक्ट्रिकल वायर। ये दोनों कनेक्टेड है आपका किसके साथ, लेमन जूस के साथ, लेमन का जो जूस है। अभी आप इसमें अगर टेस्टर को डीप करते हो, ये दोनों वायर को ऐसे रखना है कि दोनों टच नहीं करेंगे एक दूसरे से और ना ही ज्यादा डिस्टेंस में रहेंगे। फिर आप अगर इसके अंदर टेस्टर से देखते हो, या फिर मान लो कि ये जो दो वायर ज्वाइन किया गया है ये टेस्टर का ही वायर है, तो अभी डीप करने के बाद आपको देखना है कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं ग्लो कर रहा है। तो ये लेमन जूस जो है ये एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, क्योंकि लेमन जूस इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली वाटर, इवन दो इट इज कंटेनिंग मोर वाटर, लेकिन उसमें कुछ सॉल्ट कुछ मिनरल्स होता है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसलिए आप जब टेस्टर से टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है। नाउ इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, द बल्ब इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में और मे नॉट ग्लो। मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा, तो ये बल्ब ग्लो कर सकता है नहीं कर सकता है, लेकिन किस कंडीशन में करेगा किस कंडीशन में नहीं करेगा वो हम देखेंगे। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. ठीक है। अभी देखो ये जो हमने पिक्चर लिया, यहाँ पर हम थोड़ा सा लेमन जूस लिया, इसमें अगर जितना डिस्टेंस मैंने बताया उतना डिस्टेंस में रखा, फिर भी अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जो करंट वायर के थ्रू पास हो रहा है दैट करंट इज वीक करंट, जिसके वजह से आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो फिर ये करंट वीक क्यों है, ये सर्किट का करंट वीक क्यों है। ये जैसे लेमन जूस मैंने बताया ये एक गुड कंडक्टर है, लेकिन इट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एज इजीली एज ए मेटल। एक मेटल में जिस तरह कंडक्ट होता है उस तरह कंडक्ट नहीं हो सकता, जिसके वजह से सर्किट कंप्लीट तो हो जाता है
लेकिन जो करंट बल्ब तक जाता है वो बल्ब का फिलामेंट को हीट नहीं कर पाता, उतना हीट नहीं कर पाता जिसके वजह से कि लाइट जनरेट हो या फिर बल्ब ग्लो हो। तो इससे बच्चों हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि बल्ब का जो ग्लो होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट के वजह से बल्ब का फिलामेंट गर्म हो जाता है और वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो ये रहा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। देन हाउ कैन वी डिटेक्ट ए वीक करंट? एक वीक करंट को हम किस तरह डिटेक्ट करेंगे? ये है कुछ रास्ता जिससे हम वीक करंट डिटेक्ट करें, क्योंकि बल्ब तो ग्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हम क्या करेंगे? वी कैन मेक अनदर टेस्टर व्हिच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट। हम ऐसा टेस्टर बनाएंगे जो कि वीक करंट को डिटेक्ट कर पाएगा। दूसरा है हम एलईडी बल्ब यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि एलईडी बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से भी गर्म हो जाता है और ग्लो करने लगता है। तो हम अगर इलेक्ट्रिक बल्ब को निकाल देंगे सर्किट से और वहां पर एलईडी लगा देंगे तो वो जरूर ग्लो करेगा। तो इस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं वीक करंट पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। तो ये है वीक करंट होने से तो बल्ब जरूर से मतलब जरूरी तौर पर ग्लो नहीं करेगा, लेकिन वहां पर अगर हम एलईडी बल्ब लगा देंगे तो वो ग्लो करने लगेगा। तो फिर ये एलईडी क्या है? एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। ठीक है, सो दिस एलईडी, this is the full form of LED. It stands for light emitting diode. Okay, and LED is a semiconductor device that produce infrared light when electric current is applied to the device. ये एक semiconductor device है, ठीक है, and इससे बहुत जल्दी लाइट निकल जाता है जब थोड़ा सा करंट भी इसमें पास होता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। और ये है बहुत तरह के एलईडी आप देख सकते हो। आप सब लोग एलईडी के यूज के बारे में जानते हो, आप एक्टिविटी में भी आप एलईडी यूज कर चुके हो। तो अब देखो बच्चों एलईडी का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका यूज कैसे किया जाता है। ये एक एलईडी बल्ब है, आप देख सकते हो इसका जो दो लेग है जिसको कहा जाता है लीड। ओके, इसको कहा जाता है लीड। सो वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लीड है ये लॉन्गर है और ये जो लीड है शॉर्टर है। ठीक है, और आप जब कनेक्ट कर रहे हो सर्किट के साथ आपको ध्यान रखना है कि द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये लॉन्गर एंड ज्वाइन होना है और नेगेटिव एंड के साथ ये शॉर्टर एंड ज्वाइन होना है। ठीक है, और किसका नेगेटिव पॉजिटिव? बैटरी या सेल का। ठीक है, ये जो लॉन्गर लेग है बिग लेग है वो ज्वाइन होना है पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है नेगेटिव आई मीन शॉर्टर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन होना है। अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने देखा कि हीटिंग इफेक्ट के वजह से बल्ब ग्लो करता है। अभी करंट का एक दूसरा इफेक्ट होता है जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास के बारे में आप सबको मालूम है, जिसमें कि एक डायल होता है, डायल के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन लिखा जाता है, उसके सेंटर में एक मैग्नेटिक नीडल होता है और वो नीडल हमेशा किस तरफ फेस करता है? नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का है ये कैसे पता चलता है? व्हेन मैग्नेटिक कंपास के पास से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, मतलब
वो जो नीडल होता है वो मूव करने लगता है। और ये जो नीडल का थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। और बाय यूजिंग द मैग्नेटिक कंपास यू कैन डिटेक्ट वेरी वीक करंट इवन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है आपका मैग्नेटिक कंपास। फॉर ए closed circuit, when current passes nearby a magnetic needle and if the deflection is observed in the needle, then it means the substance is conducting, otherwise it is not conducting. Excuse me. So ये कंपास को अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के पास हम रख देंगे, अगर इस नीडल में, दिस इज द नीडल, ये नीडल में अगर डिफ्लेक्शन होता है, ये हमेशा नॉर्थ साउथ के पॉइंट में रहता है, अगर ये डिफ्लेक्शन होता है तो हमको पता चलेगा कि उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। So now tester by using magnetic compass. हम मैग्नेटिक कंपास यूज करके एक टेस्टर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि नहीं हम उसको पता कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए ब्लैंक मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का अंदर से जो ट्रे वाला होता है ना, जिसमें स्टिक्स होते हैं, उसको खाली करके निकाल लेना है। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। उस ट्रे के चारों तरफ वायर, इलेक्ट्रिक वायर, कंडक्टिंग वायर बांध लो। Then insert a small compass needle inside it. उसके अंदर एक compass needle रख दो। Now connect one free end of the wire to the terminal of a battery and leave the other end free. दूसरा end को आप free रख दो। Take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery and join the free end of the two wires momentarily. Okay, the compass needle should show deflection. Your tester with two free ends of the wire is ready. Touch both the ends of the tester to any substance to check whether the substance is conducting the electricity or not. If the deflection is observed in the needle, then it means that the substance is conducting. Now I will show you the picture so that it will be clear. हम एक यहाँ पर टेस्टर बना रहे हैं। मान लो हमने ये जो यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने सपोज से वाटर लिया एंड दैट वाटर इज नॉट प्योर वाटर। ओके, जो हम ड्रिंकिंग वाटर है वो लिया जिसमें कि कुछ सॉल्ट है सपोज। ओके, तो हम अभी टेस्टर बना रहे हैं। किस तरह बना रहे हैं, ये मैच बॉक्स का जो ट्रे है उसको ले लिया, उसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास डाल दिया जिसका नीडल मैंने जैसे बताया था हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। अभी इस सर्किट में क्या है, ये है आपका बैटरी, फिर ये है कनेक्टिंग वायर। ये जो वायर है, वायर को ऐसे 6-7 बार इस मैच बॉक्स के ऊपर हम उसको रैप कर देंगे। उसके बाद उसका जो फ्री एंड है, एक एंड को हम सेल के साथ जोड़ देंगे, दूसरा एंड को हम वाटर में डीप कर लेंगे। उस तरह आपका जो बैटरी का दूसरे टर्मिनल से जो वायर निकला हुआ है उसको भी हम फ्रीली छोड़ देंगे वाटर में। तो ये बन गया आपका टेस्टर। ठीक है, ये बन गया, ये जो सर्किट है ये एक टेस्टर है। अभी हमको पता करना है कि वेदर दिस वाटर इज कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ये डीप है और स्विच ऑन है, अगर स्विच ऑन है यानी सर्किट क्लोज है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया तो इसका मतलब है द वाटर इज कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर इज नॉट द प्योर वाटर। लेकिन यहां पर अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो क्या होगा, यहां पर कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। तो अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है मतलब दिस फ्लूइड इज नॉट ए कंडक्टिंग फ्लूइड, क्योंकि
यहाँ पर हम कोई भी फ्लूइड, कोई भी चीज लेंगे जो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, वो हमको इस टेस्टर से पता चल सकता है। उसमें थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम मैग्नेट यूज करके, कंपास यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं पता कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अभी टैप वाटर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। द टैप वाटर obtained from various sources like river, well, tap etc. is not in its purest form. Purest form में नहीं होता. It contains many impurities in it, and these impurities include different salts too. As a result of this salt, the tap water becomes a good conductor, but your distilled water is not a good conductor. क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई इम्प्योरिटीज नहीं होता, इसमें ना कोई सॉल्ट होता है, ये पूरी तरह प्योर होता है। सो इसको हम कंडक्टर नहीं बोल सकते, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो इसका कंडक्टिविटी हम चेक करने के लिए, टैप वाटर या डिस्टिल वाटर का कंडक्टिविटी चेक करने के लिए हम मैग्नेटिक टेस्टर यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आपको कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में जरूर समझ तो आ गया होगा, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। लेकिन आपको इसका जो हीटिंग इफेक्ट और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, आशा करती हूँ कि वो समझ में आ गया होगा। हीटिंग इफेक्ट्स के वजह से बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि उसका फिलामेंट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट हो जाता है और लाइट जनरेट करता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट यूज करके हम टेस्टर बना सकते हैं, जिससे हमको पता चल सकता है कि एक वीकर करंट भी किसी सब्सटेंस के थ्रू पास कर रहा है, तो हम उसको पता कर सकते हैं बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। सो यहाँ तक हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड electroplating, which is a very important topic. So children, thank you very much for watching this video till end. And once again I am telling you, if you have not subscribed my channel, then subscribe it immediately, and don't forget to give a comment in the comment section. And also, if you think that it is useful for you, don't forget to like the video. Thank you very much.